Okay, so today some of the aspects related to budget, some funds allocation related to some Naxalism and other related aspects. Since it is an evolving topic, so we cannot say this is the final. And also after this session, I will give you link of three articles which are mentioned in PIB. So you will go through, you will have a little more aspects about those aspects related to MHA and all. And Naxalism and all is related topic. And in fact, in March, or you can say by end of March, or you can say early April, depending on some of you may have interview even in March. So we will see what all are happening. So some of the aspects today we'll discuss and some in coming days. Okay. सो ये जो आपका जैसे हैं अभी जो बजट देखोगे तो टोटल हमारा जो बजट साइज था वो 53 लाख प्लस करोड़ का है। तो जो एमएचए है तो एमएचए इंक्लूडिंग यानी कि डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू यूनियन टेरिटरीज। देखो एक जो जैसे जो फंड कुछ होते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स जो नॉर्मल होते हैं, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर को होते हैं, और कुछ जो होते हैं उनको लेट अस टेक टैक्सेस वगैरह में दिए जाते हैं। ओके सो ओके 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 ठीक है। तो जो आपके फंड हैं इन नॉर्मल जो एमएचए को मिला है 2,55,233 करोड़। ठीक है। और ये जो है 9% इंक्रीमेंट। अब ये देखो पूरे डेटा हमको याद करना, मेमोराइज करना नहीं, हमको रफ में ध्यान रखना है। इन रफ वी शुड नो कि यस this is given to MHA, and also this is related to budget, sorry, census. So we know ki we are having census this year, and that data will be published next year. Okay, so 6,000 crore has been earmarked for census related work, the first phase of which will begin in April 1. Okay. Then Central Armed Police Forces total 1,73,802. See, approx size of Central Armed Police Forces is 1 million, but active forces are means sanction strength is more than 1 million, but actual on ground we are having 9.56 lakh approx as per the data of MHA. So for that we are having 1,73,802 crore. And obviously in defense ministry is much more than this. So among the union territory, Jammu and Kashmir received the highest allocation, 43,290, and national capital territory of Delhi 1,348 crore. But 1,348 crore, it is not the entire budget. There are some other provisions also. Let us take mandatory expenditure. Mandatory expenditure in the sense ki salary and all other staffs of Delhi are from different aspects. Okay. Then Andaman Nicobar. So we should not know detail. Just I have written. This is not important. Important is the total budget of Central Armed Police Forces. So it is 1,73,802. So roughly you should remember, yes, it is approx 1,70,000. That you should remember. Then for census, it is 6,000 crore. Then, for example, in CAPF, okay. So in CAPF, we are having CRPF is the largest location. It is 38,517 crore. Okay. So those who are having first preference at CRPF, let us take, they should know, yes, so it is the share. And even if not, then you should have a rough, let's take 38,000 approx. So it was in last time, it was 37,000 in revised estimates. BSF 29,000. Okay. Then CISF 15,000. Okay. So there is drastic decrease in CISF. One reason is that CISF is also earning on its own. So CISF is providing so many services from protection to fire services to consultancy and all. So that is the reason it is having lesser. And also
ITBP, they are having less number of people. Okay, so ITBP 11,324 crore, and SSV is 10,984 crore. So this is in rough budget allocation. Then Assam Rifle, we are not required to know. Just I have written just rough, take the rough guess. Otherwise, no need. Only need is our 5 participating force. You should know. If you are knowing, it is better. Okay. And other, just you have to see. I have provided, but no need to memorize. Okay. Then it is 3,601 crore has been provided for security related expenditure and a special infrastructure scheme for left wing extremism affected area, as the MHA has set a March 31 deadline for complete elimination. Since this is important issue, that's why I have provided this. Then budget has also allocated 5,576.51 crore for border infrastructure and management, and 5,393 crore for police infrastructure, including construction project of CAPF and Central Police Organization, Delhi Police, and assistance to state and UT for narcotics control. Then women's safety, just go through, just see, no need to memorize. Okay. Then this is the point you should know while replying answer. This point is important. Okay, so the budgetary allocation for infrastructure of Central Armed Police Forces, Central Police Organization, and Delhi Police has been increased by nearly 50% compared with the revised estimates of previous year's budget. What is happening now? Ki majority funds, majority expenditure going to Central Armed Police Forces is going to general means pay, pension, etc. Plus revenue expenditure in the terms of, let us take, we are purchasing bullets, we are purchasing maintaining weapons, and other expenditure on day-to-day basis. But a specific for long-term infrastructure and all, we are having very less fund. So it is a good thing that we have 50% more compared to last. So it is 5,394 crore has been allocated to infrastructure projects under these categories compared to 3,684 crore in the revised budget last year. So a total of 4,379 crore were originally allocated to the same verticals in last year budget released by finance. So just go through first paragraph, and in one, no need to memorize number, but at least first paragraph you should know. Okay, first point. Then also since January 2024, related to Naxalism and all, more than 500 Naxalites, including top cadres such as CPI General Secretary Nambala Keswa Rao, Baswa Raju, has been killed in encounters in Chhattisgarh. See, we are successful. Why? Because in last, let us take 2 years, means 24-25, we have neutralized more than 500 Naxalites. And also, let us take the encounter in Chhattisgarh, while around 1,900 were arrested and over 2,500 surrendered during the same period in the state as per police. Okay, so it is related to the Chhattisgarh area, and main hotbed of Naxalism is Chhattisgarh area. And at this time, out of last, for example, when we started in 24, so deadly in affected area where, or districts were 36, but now just we are having 3. Okay, so Naxal affected districts slashed from 126 in 2014 when the present government came. At that time 126 districts were there, and now it is only 11 that yesterday I also discussed. The most affected districts came down from 36, means 2014 it was 36 most affected, and now just 3, so Sukma, Narayanpur, and Bijapur, making the near collapse of the red corridor. Over 12,000 kilometer roads, 586 fortified police stations, 361 new camps, 8,500 plus mobile towers operational, and 92 crore assets seized have ended geographical and financial dominance of Maoist. In 2025 alone,
317 Naxals neutralized, including top leadership, 800 plus arrested, and nearly 2,000 surrendered, driving the highest ever attrition and demonstrating irreversible momentum towards Naxal-free India by March 2026. So this is important. Then also related to Operation Sindoor, obviously Operation Sindoor, India after Operation Sindoor, I will take a separate session, but this is short, brief information. So India has adopted a firm and clear approach towards cross-border terrorism. The pattern of action over the last decade reflects this policy. After the Uri attack in 2016, India carried out surgical strikes across the line of control. Following the Pulwama attack in 2019, India launched precision air strikes on a terrorist camp in Balakot. Then the most recent and defining operation came in May 2025 with Operation Sindoor. In response to the killing of civilians in Pahalgaon, India gave its armed forces full freedom of action using drones and precision munitions. They struck 9 terrorist camps in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. More than 100 terrorists were eliminated, including individuals linked to IC-814 hijacking and the Pulwama attack. Pakistan attempted retaliatory strikes through drones and missiles, but Indian counter-drone systems neutralized them. In his Independence Day address of 2025, PM described Operation Sindoor as a new normal, making it clear that India will respond with full force whenever terrorism threatens its citizens. Okay, then PM Modi has repeatedly laid down clear boundaries in dealing with Pakistan. These 5 red lines now define India's approach. So, firm response to terror attacks. Any attack on India will be met with a decisive reply. Means India will not tolerate any type of such type of terrorist attack. Then no tolerance for nuclear blackmail. Pakistan for long time means since 1998, when India and Pakistan both became nuclear powered nuclear states, Pakistan was blackmailing in terms ki anything will happen, because Pakistan is knowing that it will not defeat India in conventional warfare. So it was threatening or blackmailing in terms of nuclear arsenal. So India said clearly, India will not take this threat now. Okay, so nuclear threats will not prevent India from striking terrorist bases. Then no distinction between terrorist and their sponsor. So both will be held equally accountable. It is not about just India will take action against terrorist. It will also take action against those who are sponsoring, whether a sponsorship is from any other party or from government. So terrorism first in the talks. And for a long time, India is, for example, saying that without ending terrorism or without eliminating terrorism, it is not possible to have peaceful engagement. So engagement with Pakistan, if it happens, will focus only on terrorism or Pakistan-occupied Kashmir. So India wants, or India claims rightly, that Pakistan-occupied Kashmir is integral part of India. So we must have. Then zero compromise on sovereignty. So terror and talks cannot go together. Terror and trade cannot go together, and blood and water cannot flow together. Okay. Then Operation Sudarshan Chakra. Okay. So beyond immediate response, the Modi government is preparing for long-term threats. In his 2025 Independence Day speech, PM Modi announced the Sudarshan Chakra mission, a futuristic defense program. Its goals are threefold: to ensure the entire system is researched, developed, and manufactured in India, to anticipate future warfare scenario through predictive technology, and to create precise targeted systems for counteraction. By 2035, the aim is to provide a comprehensive national security shield for both strategic and civilian assets. Okay, so these are some of the aspects, some of the area where we should work, we should know about the basics. तो जो हमने कुछ जो बजट के एस्पेक्ट्स आपको बताए, तो वो बजट के एस्पेक्ट्स ऐसा नहीं है कि आपको डिटेल में जानना है, आपको बेसिक्स जानना है। रफ में आपको आइडिया होना चाहिए कि हमारा जो सीएपीएफ को क्या दिया जा रहा है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में भी जानना होगा, वो हम बाद वाले एस्पेक्ट्स में लेटर किसी स्लाइड में कुछ और जो जब मे बी ऑपरेशन जो सिंदूर है उसके संबंध में मैं डिस्कस जब करूंगा, तो उसका जो स्लाइड बनाऊंगा तो उसमें डिफेंस वाले जो होंगे
कि व्हाट इज द न्यू एडिशन। बिकॉज आप देख रहे हो कि जब भी प्राइम मिनिस्टर हमारे, या जो भी है राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो कुछ भी मेजर टॉक्स जब भी वो देते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे आउटसाइड पार्लियामेंट हो, तो दे आर ऑलवेज टेकिंग प्राइड एंड फीलिंग enthusiastic कि यस वी हैव डन सो मच इन ऑपरेशन सिंदूर। सो इंडिया एक तरह से आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, सो इस ईयर एक तरह से 1 ईयर इसका हो जाएगा मई में। तो अभी कुछ दिनों के बाद हम जो भी है थोड़े से एस्पेक्ट्स को उसके भी डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेज हुए हैं, और उसको थोड़े से जो बजट वगैरह के प्रोविजन या लास्ट जो 1 ईयर में जो भी इससे डेवलपमेंट हुए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट जैसे हमने बोला आपको कि मैं आपको ये इस मीटिंग के बाद 3 लिंक्स दूंगा पीआईबी का, उसमें आप थोड़े से और इसको पढ़ोगे। जैसे 2 लिंक होगा उसमें जो आपका माओइज्म से रिलेटेड होगा, जो माओइस्ट नक्सलिज्म से रिलेटेड, और एक जो होगा वो एक तरह से लास्ट 1 ईयर में एमएचए के जो मेजर इनिशिएटिव्स इंसिडेंट इवेंट्स जो हुए हैं उसके ब्रीफ में, उसमें उस जो तीसरा एक आर्टिकल होगा जिसमें आपको बहुत सारे आर्टिकल का लिंक होगा, लेकिन ऑब्वियसली डिटेल में आपको हर लिंक को ओपन नहीं करना है, एटलीस्ट एक एक दो दो लाइन होगा, उसको हमको देखने की जरूरत है। देखो जैसे जो भी हमारा आगे प्रोसीजर चलता है और या जो भी इंटरव्यू में एस्पेक्ट्स हैं, तो हमको कुछ कुछ जो एस्पेक्ट्स हैं एमएचए से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा हमको इंटरनल सिक्योरिटी के एंगल से जाना। बाकी जैसे जो करंट के टॉपिक्स हैं, जैसे इंडिया यूएस जो ट्रेड टॉक्स हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। आगे जो नेक्स्ट वाले वीक होगा तो उसमें हम एक तो ऑपरेशन सिंदूर वाला हम एक सेशन में करने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हाउ इंडिया इज चेंजिंग, और दूसरा जैसे यूएस वाले के साथ जो भी अभी हाल में जो कुछ नॉर्मलाइजेशन हुआ है और या कुछ चेंजेस हुए हैं उसके संबंध में भी हम चीजों को डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी चलो ठीक है, ये मैं जो पीपीटी है उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में जो मीटिंग फिनिश हो जाएगा। अभी since yesterday I did not take question and all, so now for the 10-15 minutes you are free to ask question, questions query जो है वो आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ। सर 2 दिन पहले मतलब कि होम मिनिस्टर का एक स्पीच था। हम्म। तो उसमें वो कह रहे थे कि जो नक्सलिज्म का जो इशू है वो मतलब कि डेवलपमेंट से रिलेटेड है ही नहीं। और इसमें वो मतलब कि फैक्चुअल बात बता रहे थे कि जैसे कि दांतेवाड़ा या सुकमा जो डिस्ट्रिक्ट है हम्म। उससे कहीं ज्यादा मतलब कि पुअर डिस्ट्रिक्ट आसपास में था, हम्म। लेकिन वहां पे नक्सलिज्म प्रिवेलेंट नहीं हुआ है, फिर उसका प्रमोशन नहीं हुआ। हम्म। लेकिन उस और भी जो मतलब जो पुअर सेट है डिस्ट्रिक्ट जो भी हुआ वहां पे हम्म। मतलब कि हुआ। तो उनका मतलब क्रक्स ये था कि मैं प्रूव कर सकता हूँ कि डेवलपमेंट का कोई रिलेशन नहीं है मतलब कि नक्सलिज्म से। तो इस तरह से मतलब कि हम लोग अपना बात इंटरव्यू बोर्ड में रख सकते हैं क्या? देखो देखो डियर, क्या है ना कि जब होम मिनिस्टर कुछ भी बोल रहे हैं और ये करके, तो वो एक कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, जैसे अब एक सिंपल एक एग्जांपल लो कि जो उनका जो डायमेंशन है, जैसे आप ये कर सकते हो लेटेस्ट टेक की उड़ीसा है, तो उड़ीसा का फॉर एग्जांपल, तो अब जो टॉप अफेक्टेड जो एरिया है उस बेस पे वो नहीं है, या अब उसको पुबर्टी के ये सेंस में यदि देखो तो पर कैपिटा इनकम लेटेस्ट टेक बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे शिवहर वगैरह हैं, वहां बहुत स्थिति बुरा है, लेकिन वो वहां नक्सलिज्म तो नहीं है। तो एक डायमेंशन वो होता है डियर। देखो एक चीज मानो कि वो एक फैक्टर है, कहीं भी जो है किसी भी चीज को आप एक ही पॉइंट में जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अब लेट अस टेक लो कि उस आधार पे कोई जो उनका काउंटर करने लगेगा तो ये बोलेगा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे जो एरिया हैं वहां तो जो जहां पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा है, तो वहां तो नक्सलिज्म जैसा कुछ चीजें नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल लो गोवा, गोवा का पर कैपिटा इनकम बिहार से बहुत ज्यादा है, तो वो ऐसा नहीं है वहां प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप ये एक डायमेंशन को सिर्फ एक चीजों को करो, सिर्फ देखो, इट इज नॉट ओनली ड्यू टू पॉवर्टी,
देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। तो उनका ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि पुबर्टी रीजन नहीं है ये, तो पुबर्टी इज नॉट ओनली रीजन। देखो एक चीज ये तो लेकिन मानोगे ना कि जिस जिस एरिया में नक्सलिज्म हुआ, स्टार्ट जो हुआ या जो था, तो वहां प्रॉब्लम थे, वहां लोगों को सारे डेवलपमेंटल वर्क नहीं मिले अभी तक। जैसे गवर्नमेंट ने भी मल्टीपल टाइम एक्सेप्ट किया है कि हमने वो उन लोगों तक जहां तक डेवलपमेंट पहुंचना था तो नहीं पहुंचा पाए। तो आज गवर्नमेंट क्यों कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम उनको डेवलपमेंट ये करना। तो उन्होंने एक पार्ट को बोला, और किसी चीज को आप प्रूव नहीं कर सकते हो एक ही डायमेंशन को लेकर के। अब सोचो, एक ही इज होम मिनिस्टर, अब उनको तो कोई काउंटर उस ढंग से नहीं कर सकता ना ओपनली चैलेंज करके। तो आपको एक फैक्टर लेना है, एब्सोल्यूट उसी पर हम नहीं ये रहेंगे। ओके। यस सर, हम भी जैसे कि यही सोच रहे थे कि हम्म। बहुत सारा कारण होता है किसी एक मतलब कि गोल को अचीव करने में, बहुत सारा एफर्ट अलग अलग हम्म। डायमेंशन उसमें यूज होता है। तो पोवर्टी उसमें एक हाँ, मेजर फैक्टर कह सकते हैं। अभी जैसे ना एक सिंपल एग्जांपल लो, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए, जो टेररिस्ट एक्ट हुए, उसमें से सारे डॉक्टर इन्वॉल्व थे। तो अब हम ये क्या बोलेंगे कि हमको डॉक्टरी का पढ़ाई बंद कर देना चाहिए? नहीं यार, वो कुछ लिमिटेड लोग वैसे रेडिकलाइज्ड हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, लेकिन क्या हम सबको मेडिकल पढ़ाई बंद करवा देंगे? नहीं। तो या ओसामा बिन लादेन या जो भी और बहुत सारे टेररिस्ट हैं, या बहुत सारे ऐसे हुए जो हाईली एजुकेटेड थे, तो हम अब ये कहेंगे कि ज्यादा एजुकेशन इसका मतलब है कि ज्यादा टेररिस्ट बनने के चांसेस नहीं। वो एक बेस नहीं है। अब सपोज करो कि कोई आदमी रिसर्च करेगा, तो वो बोलेगा जितने भी टॉप लेवल के लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं हाईली एजुकेटेड हैं। तो इसका मतलब है क्या कि जो एजुकेटेड हो रहा वो टॉप पे पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड करना चाहते हो तो आपके पास अच्छा एजुकेशन चाहिए, आपके पास समझ चाहिए। लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम ये कहेंगे कि मोर एजुकेशन इज लीडिंग टू एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म। नो, वो एक उसका फैक्टर है। तो हम किसी को भी फैक्टर के टर्म्स पे लेंगे। ओके। यस सर। हम्म। सर एक और जैसे कि वो यहाँ पे जैसे कि पैराडॉक्स दिखता है एक क्वेश्चन में, जैसे कि जो वाटर शेयरिंग को लेकर के आजकल जो कन्फ्लिक्ट मतलब कि एक हो सकता है, हम्म। जैसे कि इंडिया अगर चाहे तो पाकिस्तान को हम लोग मतलब कि वो सबमिट करा सकते हैं, हम्म। चाइना चाहे तो वो इंडिया को नॉर्थ ईस्ट हम्म। को डिस्टर्ब कर सकता है। हम्म। तो इस केस में जैसे कि एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, जैसे कि हम्म। अगर ये देखें कि क्या ये मतलब कि भारत के लिए ये स्टेप लेना सही है कि हम लोग मतलब कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको अवेंस में डाल दिए, क्योंकि इससे जो इनोसेंट लोग हैं वहाँ के वो मतलब कि ज्यादा सफर कर रहे हैं, जो लोग परपिट्रेटर्स हैं जो रियल मतलब कि हम्म। इसके पीछे हैं उनको तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इस को हम लोग कैसे मतलब कि भारत का जो स्टांस है कि हम लोगों ने IWT को अवेंस में डाल दिया, तो इसको हम लोग कैसे डिफेंड करेंगे देखो अच्छा तरह देखो, से। क्या है ना कि दिस इज अ प्रेशर टैक्टिस। और ये प्रेशर टैक्टिस में जब आप ये करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम 100% बंद कर दोगे। वो थोड़े बहुत ये जैसे कम करोगे, तो प्रेशर तो क्रिएट करोगे। देखो जज के पास भी अपर हैंड है, तो वो प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे हमारा और चाइना का लो, तो बहुत कुछ हद तक चाइना के पास अपर हैंड है, तो वो प्रेशर क्रिएट हमारे ऊपर करेगा। लेकिन जैसे हम जब पाकिस्तान के संबंध में आता है, तो पाकिस्तान से हम एक तरह से जब इंडस वाटर ट्रीटी हुआ तो हमने काफी लेनियंसी दिखाई। वी शोड आर बिग हार्टेडनेस। तो अब उसको बहुत सारे चीजों को हम कंट्रोल ये कर सकते हैं। और दिस इज ट्रू। देखो ये जो बोल रहे हो ना कि सही है कि यार सारे पाकिस्तान में तो टेररिस्ट नहीं बैठे हुए हैं ना। देर आर सो मेनी पीपल, वो इनोसेंट है, मेजोरिटी इनोसेंट हैं, और उनके साथ हमारा अच्छा बहुत सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत सारे चीजों को करते हैं। आई नो कि सम ऑफ द पीपल, जैसे लेटेस्ट टेक लो ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं। तो मैं देखता हूं कि ऐसा नहीं है कि सब लोग एब्यूजिव, जो एजुकेटेड है, जो चीजों को समझ रहा है, तो वो सब उसी सेंस में नहीं है। वैसे ही देखा जाए तो आप यदि पूरे सिचुएशन आप एकदम स्टॉप कर दोगे तो फिर और वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इनफैक्ट देखो मेनी टाइम इट हैज बीन सेड बाय रिसर्चर और जो भी स्कॉलर्स हैं कि एक जो प्रोस्पेरस पाकिस्तान इज इन फेवर ऑफ इंडिया, ये चीज भी बहुत बार अब इसके काउंटर भी होते रहे हैं। कोई भी थ्योरी जो होता है एब्सोल्यूट में नहीं होता है।
तो हम जो एज ए इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल पावर है, तो वी विल नोट डू 100% बैन, एक तरह से 100% हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यदि उस सेंस में फिर इंडिया के पास भी कंडीशन है कि चाइना हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट चाइना के डर के एंगल से नहीं, लेकिन हम एज ए इंटरनेशनल लेवल पे भी देखो, सिर्फ आप ये सोचोगे कि वो कर दोगे, तो इंटरनेशनल लेवल से भी तो आपके पास प्रेशर आएगा। बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेशनल लेवल में भी देख करके करना पड़ता है। हाँ, इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे इशू जो है बायलेटरल हमको डील करना है, एक्सटर्नल प्रेशर की एक लिमिट होती है, लेकिन फिर भी आपके पास प्रेशर तो रहेगा। तो इंडिया, आप ये नहीं सोचोगे ना कि यूनिलेटरली हर डिसीजन लोगे, और ताकि जो इंटरनेशनल एरिना में आप अकेले पढ़ो, तो वो ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन आप प्रेशर तो क्रिएट करोगे ना कहीं भी जब आपके पास अपर हैंड है तो। यस सर, समझ गया। मेन जो इसका पॉइंट वो मतलब क्रक्स है वो कि प्रेशर टैक्टिक्स की तरह यूज करना, ताकि अपना इंडिया हाँ। अपना स्टांस को इस तरह से प्रेजेंट कर सके और प्रोटेक्ट कर सके अपना इंटरेस्ट को। चलो, एनी वन मोर? गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, यस, बताओ राजू। सर, जैसे लेफ्टिनेंट एक्सट्रीमिज्म बेसिकली क्लास बेस्ड इमर्ज हुआ था, बट स्टेट लाइक बिहार वहाँ कास्ट बेस्ड भी इमर्ज हुआ, उसके काउंटर में कास्ट बेस्ड लाइक रणवीर सेना ये सब बना। हम्म तो उसको काउंटर करने के लिए बिहार ने मतलब कि जो कास्ट बेस्ड जो मिलिशिया बना था उसके लिए क्या क्या किया था? हम्म देखो क्या है ना कि एक लॉन्ग टाइम बैक 2012 की बात बता रहा हूँ, जयराम रमेश तब मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने एक माओइज्म पे जो एक लेक्चर दिया था, इंडिया जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। तो उन्होंने बोला ना कि ये देखो, जो आपका माओइस्ट और नक्सलिज्म का प्रॉब्लम है, तो पूरी इंडिया में डिफरेंट टाइप्स का है, बिहार एक अलग है, एक्सेप्शन है। तो बिहार में बहुत सारी चीजें जो हुई है वो कास्ट बेस्ड पे आ गई है, ठीक है ना। तो अभी जैसे देखो, जो रणवीर सेना के जो वो चीफ थे परमेश्वर मुखिया, तो कहीं ना कहीं जो बिहार में एक तरह से फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट इस सेंस में आ गया, जो प्रॉब्लम माओइज्म का। और अदर स्टेट्स में देखो तो उस टाइप के सिचुएशंस नहीं आए। जैसे आप आज के डेट में देखो, जो माओइज्म का टॉप कैडर है, तो वो टॉप कैडर जो है एक तरह से तेलुगु स्पीकिंग है। तो यानी कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के, या फिर जैसे स्टार्ट हुआ वो नक्सलवादी का, तो वहाँ जो डायरेक्ट एक तरह से जो लैंडलेस क्लास हैं, और एक तरह से जो लैंडेड क्लास हैं, यानी कि जिनके पास लैंड है, जमींदार हैं, और जिनके पास लैंड नहीं है, और या फिर कुछ चीजों में जैसे बाद में गवर्नमेंट पर भी आ गया। लेकिन बिहार में बहुत सारी चीजें जो कास्ट बेस्ड पे, तो बिहार एक आउटलायर है, वो एक्सेप्शनल वाले केस में है। अब देखो, जैसे बिहार का एक बीच में प्रॉब्लम जो हुआ कि बहुत सारे, जितने भी आप देखोगे, जैसे जो मर्डर्स वगैरह हुए, या जो मास किलिंग हुए, तो दोनों तरफ से हुए। जैसे जो माओइस्ट थे उन्होंने भी अपर कास्ट में किल किया, और जो अपर कास्ट वाले, तो वो उस समय एक प्रॉब्लम क्या हुआ कि उस समय बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर का पूरे फेलियर था। बहुत सारी चीजें, पुलिस तो है लेकिन पुलिस लाश उठाने जा रही है और सारी चीजों को, तो बिहार में थोड़े से सिचुएशन अलग थे। लेकिन जैसे ही देखो, धीरे धीरे जैसे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, नीतीश कुमार की गवर्नमेंट आई, तो कहीं ना कहीं इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का, जो आप एक अभयानंद को जानते हो, जो सुपर 30 वाले में वो भी एक जो फाउंडर में से थे, उन्होंने बहुत सारी चीज की कि वेपन सिस्टम्स वगैरह के हैं, उनको आप सबसे पहले वेपन्स जो जिनको दिए हुए उनसे लो, बहुत सारी चीजों को उन्होंने कंट्रोल ये किया। तो जब एक तरह से स्टेट एज ए एक्टिव पार्ट में आई, लेकिन ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, इनके टाइम में भी रहा। इवन जैसे देखोगे कि जब अ, रणवीर सेना के चीफ जो उनको मार दिया गया, उसके बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए लॉ एंड ऑर्डर वगैरह के। बट बिहार का सिचुएशन थोड़े से अलग ये थे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारा कास्ट में। लेकिन यदि हम एक डायमेंशन ले, तो जो, चूंकि लैंड फाइट कहाँ हो रहा था, लैंडेड क्लास और लैंडलेस क्लास, तो यहाँ एक तरह से वो जो सिचुएशन वही था, लेकिन हमने इसको कास्ट कलर दे दिया। बट जब से देखो, जैसे जो स्टेट एक तो थोड़ा एक्टिव हुई, फिर जो इंटरनेट पेनिट्रेशन और बहुत सारी चीजें, मोबाइल और ये चीजें कि जिसको
चीजों को ट्रैक करना आसान हुआ, रोड वगैरह चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, तो चीजें थोड़े से सही हुए हैं। तो बिहार एक आउटलायर केस बहुत सारे चीजों में है जो कास्ट बेस पे है। हाँ, और इसमें से क्या था क्वेश्चन तुम्हारा? सर इसमें ये था कि जहाँ क्लास बेस्ड माइविज्म जर्नलाइज किया था वहाँ हैंडल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन था, बट हम्म बिहार एक अलग केस है जहाँ डिस्पर्स भी है और कास्ट बेस्ड भी है। इसके हम्म लिए स्पेशल मेजर स्टेट गवर्नमेंट क्या लिया था हम्म और सेंटर? देखो, जैसे दें, सेंटर एक तरह से ना इसके लिए जो है बिहार के लिए स्पेशल कोई सेंटर ने कोई बहुत बड़ा मेजर ये स्टेप्स नहीं लिया। देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि जो माओइज्म वगैरह की घटनाएं बहुत बार होती है, तो उसमें से स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पावर रहे। तो जो सेंटर का जो इनिशिएटिव है, एक तरह से जैसे देखोगे कि बाद में इनफैक्ट देखो जो कोबरा बटालियन बना, तो 10 कोबरा बटालियन बने, तो उसमें से एक देखोगे कि बिहार में भी ये पोस्टेड हैं, जो औरंगाबाद में उनका हेडक्वार्टर है। तो सेंट्रल के तरफ से ये हुआ कि आप सेंट्रल असिस्टेंस जैसे दे रहे हो, तो जो एरिया देखो, जो सेंट्रल वाले असिस्टेंस हैं, तो वो सबके लिए मोर और लेस इक्वल है। कि सपोज करो कि आपने जो जैसे कोबरा है, तो 10 आपने कोबरा जो यूनिट्स रखे हैं, तो उन्होंने स्टेट्स में रखे हैं जहां प्रॉब्लम है। जैसे झारखंड में अभी फिलहाल के लिए तो एक कोबरा बटालियन झारखंड में है, एक बिहार में है, फिर देखो आसाम में है, फिर एक ये मतलब छत्तीसगढ़ में है, फिर उधर आपका कुछ जो पार्ट उसके महाराष्ट्र में है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में आपने 10 कोबरा बटालियन को रखा हुआ है। तो सेंटर का जो मोर और लेस वो बराबर है। अब जो स्टेट का जो इनिशिएटिव था, तो स्टेट का इनिशिएटिव्स में एक तरह से देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल लालू यादव का के टाइम में था, तो कहीं ना कहीं वो जो था कि एक वो मानते थे ना कि हमने पिछड़ों को, सिंस लालू प्रसाद यादव जो पावर में आए, तो वो एक तरह से कि हम जो अपर कास्ट हैं उनको सबड्यू करके, और जो दलित पिछड़े हैं, जो लोग मार्जिनलाइज हैं, हाशिए पे हैं, हम उनको आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं उस सेंस में एक तरह से उस समय क्या हुआ कि माओइस्ट की जो घटनाएं हो रही थी, तो थोड़े से लालू यादव की सरकार उसमें इनिशिएटिव ज्यादा नहीं ले रही थी। लेकिन जब ये बाद में 2005 के बाद इनकी पावर चली गई, फिर नीतीश कुमार आए, तो उन्होंने, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकते कि कोई भी गवर्नमेंट जीरो ये बायस है। कहीं ना कहीं आप थोड़े एक्स्ट्रा कोई इस तरफ कोई उस तरफ बायस होते हो। फिर प्लस कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे अपने अपने एरिया में जो लोकल माइलेज लेने के लिए वो उसमें इंटरफेयर कर रहे थे। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि किसी भी जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह थे, तो डायरेक्ट उनको कोई सपोर्ट देने नहीं दिया। रोड वगैरह जो है, देखो बहुत एरिया में क्या था कि रोड आपके नहीं थे, पुलिस जाती नहीं थी, पुलिस के पास वेपन्स बहुत ये खराब थे। तो स्टेट ने ये किया कि भाई किसी को कास्ट बेस्ड पे या उस टाइप के हम कोई सपोर्ट ना करें, जहां हो सकता है टाइमली एक्शन लिया गया। तो सेंटर का मोर और लेस, जैसे देखो सेंटर का क्या होता है कि आप जैसे सीआरपीएफ भेज रहे हो, कुछ में जगह बीएसएफ, लेकिन मेनली सीआरपीएफ, और जैसे कोबरा आपने भेजा, या फिर लेटेस्ट टेक और असिस्टेंस जरूरत हुआ, तो जरूरत के आधार पे आपने एक्स्ट्रा फोर्सेस दिया, तो वो किया। और स्टेट ने एक तरह से स्पॉन्सरशिप किसी को नहीं किया, और सब पर एक तरह से न्यूट्रल वे में आपने एक्शन लेना स्टार्ट किया। दूसरा, जो वेपन्स बहुत ज्यादा बिहार में नीतीश कुमार के पहले जो है वेपन्स बहुत ज्यादा थे सबके पास, जिसके तिसके पास, या देसी मेड, अभी भी ऐसा नहीं है, बहुत सारे देसी मेड आज भी हैं। लेकिन गवर्नमेंट का एक जो अभ्यानंद का कभी स्पीच सुनोगे, तो उन्होंने सबसे जो क्राइम वगैरह और ये सब को कंट्रोल करने में वेपन्स को सबसे कम किया। तो ये एक उनका कारगर हुआ। तो ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, ठीक है। यस सर। बस सर, स्पेसिफिक कोई कास्ट बेस्ड कम करने के लिए बिहार गवर्नमेंट कुछ नहीं ली है का स्टेप? नहीं, मैंने बोला ना कि जैसे देखो, जो आप एक तरह से पीछे, जैसे ये हुआ कि आप सबको मिला करके देखो, नीतीश कुमार की एक विशेषता ये है कि उन्होंने एक तरह से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की। लास्ट देखो 20+ ईयर से तो वही डोमिनेट कर रहे हैं। तो उन्होंने एक तरह से स्पेसिफिक किसी भी कास्ट कास्टिज्म को प्रमोट नहीं किया। एक उनका एक अच्छा ये माना जाता है कि इन्होंने क्या किया कि भाई सबको न्यूट्रल वे में रखने की कोशिश, कि भाई डेवलपमेंट को ये करो, जैसे भी जैसे देखो एजुकेशन से लेकर के, या अभी जैसे लेटेस्ट एक लो ना, बजट साइज आप 2004 लो, 2000 और ये आज लो, बहुत सारी चीजों में 10 टाइम्स आपने ये कर दिया, तब आपके पास सैलरी देने के लिए नहीं होता। तो वो जो आपने, जैसे लालू यादव ने क्या किया कि विकास को कम करके कास्टिज्म को ज्यादा प्रमोट किया।
इन्होंने क्या किया कि नहीं देखो ऐसा भी कास्टिज्म इन्होंने भी किया, लेकिन ये अलग तरीके से किया। ये किसी को ऐसा नहीं है कि आप फाइटिंग के लिए, इन्होंने ये किया कि आपको कास्टिज्म तो अपने टर्म्स पे वो खत्म नहीं होगा, लेकिन उसको डेवलपमेंट में चैनलाइज करने की कोशिश किया कि हम किसी को डायरेक्ट सपोर्ट गलत काम के लिए नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। सर एक दूसरा क्वेश्चन था, हम्म लाइक मनीष सर ने पूछा कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, लाइक अब्सटेन कर वहाँ इंडस वाटर सप्लाई को अब्सटेन में कर हम्म दिए हैं, एक रिफ्यूजी क्राइसिस है, तो उसमें ये बोल सकते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रमोट किया जाए, लाइक इंडिया सेल्फ इंटरेस्ट, देखो डियर, जैसे अंकल का हमेशा स्पीच। जब भी कोई कंट्री टू कंट्री जब बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट मायने रखता है। सपोज हम अमेरिका के साथ भी कोई डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अपनी प्रायोरिटी रखूंगा। इसी वजह से देखो, जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो पहला लाइन है, देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड देयर इज नो परमानेंट एनिमी, वन इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री इज इंपॉर्टेंट। और वो भी इंटरेस्ट टाइम के साथ चेंजेस होते रहता है। जैसे आपने देखा कि रसिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स था, लेकिन आज हम रसिया के साथ उतने क्लोज नहीं है, कुछ एक्सेप्शनल को छोड़ करके, और हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। चाहे वो हम पाकिस्तान से डील करें, चाहे हम किसी भी कंट्री से डील करें, हमारा वो इंटरेस्ट। देखो, जो इंडिया अफगानिस्तान में तालिबान को एक्सेप्ट नहीं करता था, और वो कहीं ना कहीं देखोगे कि तालिबान के मिनिस्टर आए इंडिया, रिस्पेक्ट से हमने बात किया, या इंडिया बैक चैनल में चीजों को बात कर रहा है, तो आप पूरे तरीके से चीजों को डाइसेक्ट नहीं कर सकते हो। कंप्लीट आइडियलिज्म, आइडियलिज्म स्पीच में ठीक लगता, लेकिन प्रैक्टिकल में आप अपने इंटरेस्ट ही देखते हो। और उसी इंटरेस्ट के बीच में देखो, जैसे दो पर्सन होते हैं ना, तो डायरेक्ट ये बोले जा तुझसे नहीं बात करता हूं, या तुमसे तुम्हारे बिना काम चल जाएगा। लेकिन जब कंट्री के केस में होता है, तो वो पर्सनलाइज नहीं होता है। कुछ चीजों में आपको दिखता हुआ होता है कि हम प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजों में हम बैक चैनल से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जो हमारा टारगेट है, हम अपने कंट्री के इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे हैं। हमारा जो कंट्री है उसको मैक्सिमम क्या फायदा हो, उसके लिए हम वर्क करते हैं। ठीक है। सर जहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन का केस हो, उस केस में क्या बोलेंगे, लाइक देखो लाइक डियर, अगेंस्ट में डाल ह्यूमन देंगे? राइट जो वायलेशन है, तो कुछ चीजों में तो हम कभी भी ये नहीं कहेंगे ना कि हम जानबूझ करके ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। बट बहुत बार चीजें कुछ होती है, कुछ टाइम हो जाते हैं। देखो, हम जब भी इंटरव्यू में ये रहेंगे, तो हमको ये करना है कि हम अधिक से अधिक जो कोशिश ये करते हैं कि किसी का भी अननेसेसरी जो है वायलेशन ना हो। लेकिन कंट्री के इंटरेस्ट में कुछ चीजें होती है, तो प्रैक्टिकलिटी में हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। जो थ्योरेटिकली जब होता है तो हम नहीं उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में कुछ चीजों को हमको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यस सौरभ। सर मतलब सर ये जो क्वेश्चन था सर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा मनीष ने। सर हम्म इसको इस तरह से आंसर किया जा सकता है कि हाँ मतलब राइट नाउ अभी हम अपने इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, पर हम ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट नहीं कर रहे हैं पूरी तरह पानी रोक करके। हम्म क्योंकि पहले भी जो पानी जाता था वो 70% जाता था, हम्म और उसको पाकिस्तान पूरा यूटिलाइज नहीं कर पाता था। हम्म अब हमने उसको अबेंस में रखा है, और टाइम टू टाइम हम पानी छोड़ते रहते हैं, जिससे कि पाकिस्तान के किसानों की भी जो हम्म आपूर्ति है वो पूरी होती है, और लोगों की भी। हम्म पर हम इसको एज अ प्रेशर टैक्टिक अपना रहे हैं, ताकि जो वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट है उससे लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, और कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल इसके उनके हाथ में आए। हम्म। इस तरह से अगर सर टैकल करें तो कैसा रहेगा? हाँ हाँ, ठीक है। देखो, जैसे क्या होता है ना कि किसी चीज का आप एकदम वाटर टाइट सेपरेशन आप नहीं कर सकते हो। चीजों को अपने कंट्रोल में, मैंने वो शुरू में बताया था ना कि जो बीच में बोला था कि देखो, इंटरनेशनल प्रेशर से लेकर के हर चीज को हमको डील करना। जो आप कम्युनिकेट करते हो, जो टॉक करते हो, वो एक डायमेंशन में नहीं होता है, सारे डायमेंशन का क्रक्स लेकर के, और जो हमको प्लस एंड माइनस होता, उसके बेस पे हम एक्यूमुलेटिव फैक्टर्स को कंसीडर करके डिसीजन लेते हैं। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, फिर बाकी कल चीजें कुछ हम में भी एसआरटी का कल कुछ एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे, और जो जैसे इस पर होंगे, जैसे ऑपरेशन सिंदूर वगैरह का, तो हम नेक्स्ट वीक में कुछ चीजों को लेंगे। ठीक है।